Good morning. Welcome to Rotary Urja project, wherein we take you through a well structured 1 hour program of yoga and pranayam. This is Rotarian Manju Fadke from Rotary District 3131, and this is brought to you by Rotary Club of Pune Downtown, Rotary Club of Pune Riverside, and Rotary Club of Pune Deccan Gymkhana. Before we begin our session, let me give you a little bit information about Rotary as such. So, Rotary is a members organization and it has a motto of service above self. What it means is that Rotary takes care of its members and members take care of the motto of service above self. How does Rotary take care of its members? What happens when you become a Rotarian? Let me just take you through this one thing very quickly. So, what happens when you become a Rotarian is that you instantly get a circle of friends who will, be there with you, come what may, and not only locally but even internationally. If you wear the pin of Rotary and go to any country where there is a Rotary in existence, which is in 220 countries today, you will be received with lot of love and respect, and instantly you will make friendship with these international people as well. Another thing that I feel that we are Rotarians are very happy, because I believe that unless you are happy, you can't make a society happy. So what makes me happy being in the Rotary? So the thing is, as I said, I get a lot of friends, I get a lot of social circle for my family, I get platform for my skills. So in Rotary we have various competitions like Ekankika, or a dance competition, or a singing competition, or a monologue competition, or probably beauty pageants, so and so forth, sports, indoor, outdoor. So you have so many things happening in Rotary that each one of you will find something of interest which is happening in Rotary. Now, that also is something which is not very easily available. So let's say you have always been wanting to sing. Where will you go and sing on a stage? So Rotary makes that stage available to you. So it makes those platforms available to you, which otherwise would not have been possible very easily for me and you, probably people beyond the age of 30. Another reason I feel that Rotary makes you happy is because it also skills you up. So, whether you like it or not, the moment you start taking participation in various activities of Rotary, it develops your group skills, it develops your personality per se, it develops your time management skills, it develops your public speaking skills. So, this happens without you even realizing it, or otherwise you would have to pay so much more money to get trained for these skills. And not only you get trained in these skills, you also get a ready-made platform again made available to you to practice these skills in Rotary. So all these things, if you really consider, then it makes a person very happy and very skilled, very good at his own profession, and of course it makes you good as a human being. And with this goodness you pass it on to the society nearby, and that's why we feel that at Rotary, happy people make the world happy, right? So this is a little tidbit from me about Rotary. Moving on to the trainer for the day, which is Rotarian Neeru Goyal. Neeru is an industrialist and a passionate practitioner of yoga and pranayama, and she has learned it none other than Swami Ramdevji Baba, and of course, nowhere else but actually at Haridwar. She is an artistic person and loves interior designing, fashion designing, and so on and so forth. And glow on her face will tell you that she is a regular practitioner of whatever she's preaching today. So, welcome again to this session. I hope you enjoy this session and you continue to practice this session on all other days rather than only on Sundays. Thank you, and over to you, Neeru. आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। साथ साथ अपने गुरु स्वामी रामदेव जी को नमन करते हुए ये सेशन स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में आपने जो लोग पुराने हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम पहले थोड़ा सा बताते हैं
और इस सेशन को प्राणायाम सेशन को हमने 5 सीक्वेंस में डिवाइड किया है। तो पहला बेसिक सीक्वेंस है, उसके बाद हम आपको बताते हैं प्राणायाम क्या है, उसके बाद हम आपको इंटरनल हीलिंग के बारे में बताते हैं और डाइट के बारे में बताते हैं, मेडिटेशन के बारे में बताते हैं। तो आज का जो सीक्वेंस है वो है सुप्रीम हैप्पीनेस। सुप्रीम हैप्पीनेस कि किस तरह से हम हर समय हैप्पी रह सकते हैं, प्राणायाम उसमें किस तरह से टूल की तरह काम करेगा। तो ये जब भी सेशन स्टार्ट होता है तो मैं शुरू में थोड़ा बोलती हूँ और एंड में थोड़ा बोलती हूँ, बाकी प्राणायाम के बारे में ही बताती हूँ, जिससे कि जब आप हफ्ते भर आप इसको सुन रहे हैं तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से प्राणायाम स्टार्ट होता है। तो शुरू में जो हमने बताना है वो आज की तारीख में ये बताना है कि ये जो चार्ट है ये हमारी संरचना है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या हो, आप कौन हो, आप खुद से भी पूछें तो इट्स ए स्ट्रेंज फीलिंग कि हम क्या हैं। हम नाम बता के ये नहीं कह सकते हम ये हैं, हम ये नहीं कह सकते कि जो आपको दिख रहा है वो हम हैं, नहीं। तो उसको हमने 5 लेयर्स में बांटा हुआ है, जैसे ये बॉडी लेयर है, ये फिर माइंड लेयर है, ये इंटेलेक्ट लेयर है और ये सेल्फ है। ये सेल्फ एनर्जी जो इसको हम कहते हैं सेल्फ, मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरे बाल, मैं चल रहा हूँ, मैं वो सेल्फ जिए है। और फिर उसके बाद एक और घेरा है जो कि कोर है, यानी कि हमारी कॉन्शियस, जिसको हम भगवान भी कहते हैं, हम इसको सुप्रीम पावर भी कहते हैं, सुप्रीम एनर्जी भी कहते हैं। तो इस तरह से ये 5 लेयर में हमारा शरीर बटा हुआ है। अभी इसमें से 5 लेयर्स में से ये 1, 2, 3 ये जो है ये हमारे इक्विपमेंट है और हम मालिक जो है वो ये है। और ये इस हमारी शक्ति को जो एक्टिवेट करता है वो हमारी सुप्रीम कॉन्शियस है, जिसके थ्रू मैं सेल्फ यानी कि मेरी एनर्जी एक्टिवेट होती है। तो ये एनर्जी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, यानी कि सुबह को जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमने जैसा बताया था कि प्राणायाम इज़ नॉट ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इट इज़ अ संकल्प, वेयर इट इज़ ए यज्ञ, जिसमें हम बाहर की जितनी बड़ी पावर है, ये सुप्रीम पावर, प्राण शक्ति, इसको आमंत्रित करते हैं कि मेरे अंदर, मेरे सांसों के थ्रू जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अंदर प्रवेश करो। और ये चाहने में मैं अपने माइंड, बॉडी, सोल सब तरह से आपको इनवाइट करता हूँ। तो इस तरह की भावना से जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो जो सुप्रीम पावर है, वो जो सुप्रीम एनर्जी है, वो हमारे अंदर आके हमारी सुप्रीम पावर से मिलती है और हमको एक अलग ऊर्जा से भर देती है। अगर हम पूरे टाइम इस एनर्जी की बात करें तो बॉडी, माइंड हमें सबसे ज़्यादा बरगलाता है, सबसे ज़्यादा। वो कहता है अभी आज उठने की ज़रूरत नहीं है, आज तो मैं बहुत थक गया था, आज मेरे सर में दर्द हो जाएगा अगर मैं प्राणायाम के लिए जल्दी उठूँगा। तो इस तरह से माइंड हमें हर समय बरगलाता है। इसी तरह से बॉडी फिर उसी का कहना मानता है और बॉडी हम सोचते हैं चलो रज़ाई ओढ़ो और सो जाओ। इंटेलेक्ट भी हमको यही सब सिखाती है, जो माइंड कहता है कि हाँ ठीक बात है, हम बहुत थक गए थे, अभी प्राणायाम आज नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे करते करते हम बहुत सारे टाइम तक एक्सरसाइज नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, या जो हमें ऑफिस का काम होता है उसको भी हम पीछे धकेलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो ये जो है, ये माइंड की आदत को आप भले भांति पहचान सकते हैं अगर आप इस साइकिल को अपने सामने हमेशा अपनी इमेजिनेशन में रखें और अपने को नोट करें कि आपको किस टाइम माइंड गलत रास्ते पे या प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए उकसा रहा है। इसके अलावा आज हम ये भी जानेंगे कि हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस इज़ नथिंग एल्स बट अ स्टेट ऑफ माइंड। ये एक स्किल है। ये स्किल कैसी है? जो कि आपकी एनर्जी से डायरेक्ट जुड़ी हुई है।
अगर हम मटेरियल चीज़ों की बात करें, ये दुनिया हमने बनाई ही नहीं है। इस दुनिया में जब हम आए थे तो कोई सर्टिफिकेट हमें नहीं दिया गया था कि आपको क्या क्या मिलने वाला है या इस दुनिया में बाकी लोग कैसे बिहेव करने वाले हैं। ये दुनिया दुनिया है, इसमें हम आए, ये बहुत बड़ी शुक्राना की बात है। अगर हम सुबह शाम या हर समय एक सेंस में रहें कि दिस वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, मेरी संरचना ही एक अपने आप में एक अजूबा है, ये हम याद करते रहें तो हमारा मन हमेशा शुक्राने से भर जाता है। और शुक्राने का डायरेक्ट लिंक होता है हैप्पीनेस से। सो वो करना हमें बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्शियसनेस आना कि हमारा जीवन अपने आप में कितना अनमोल है। हमारा ये जो बॉडी है, एक एक उंगली, हम 1-1 करोड़ रुपए के लिए भी अपना हाथ नहीं देंगे, अपना आँख नहीं देंगे। तो इस तरह का हमें भगवान ने रईस बनाया ही है और उसके लिए शुक्राना हर समय करना बहुत ज़रूरी है। जब आप पलंग से नीचे पैर रखते हैं सुबह, तो नई सुबह का स्वागत करिए और अपनी तरफ देखकर सोचिए कि हम कितने लकी हैं कि हमको इतने सारे टूल्स दिए हैं भगवान ने काम करने के लिए। हमें करोड़ों अरबों रुपए के हाथ पैर दिए हैं, आज हम धरती पर खड़े हो सकते हैं। हज़ारों लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं जो अपनी करवट भी नहीं बदल सकते। तो इस तरह से हमको स्किलफुल होना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होने के लिए। उसी तरह से एक बच्चे को आप देखिए, वो बच्चा थोड़ी देर रोएगा लेकिन उसकी एक बेसिक नेचर है हैप्पी रहने की, वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है अपने को हैप्पी करने के लिए। तो ऐसे ही वो बचपना जाने मत दीजिए। जैसे ही आपको लगे कि आप लो फीलिंग कर रहे हैं या डिप्रेस्ड मूड में आ रहे हैं, उसको पहचानिए और ढूंढिए कुछ ना कुछ कि आप उससे ऊपर आ जाए। तो ये एक और बड़ी बात ये है कि जैसे हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं, अब फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वो ट्रिप कितनी मुश्किल से प्लान करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, एक एक मोमेंट में हम क्या करेंगे। आजकल इंटरनेट के टाइम पे तो आप पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, अपने ट्रैवल एजेंट से पूरा पूछ लेते हैं कि हमारा टाइम ज़रा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से अगर जिस तरह से हम मुस्तैदी से अपने डे को प्लान करते हैं जब हम फॉरेन कंट्री विज़िट करते हैं, वैसे हमारा हर दिन क्यों नहीं हो, हर दिन हो सकता है। और उतनी ही खुशी, उतनी ही जोश से हो सकता है, उतनी ही नई चीज़ों के लिए हो सकता है कि आज हम कुछ नया करने वाले हैं, आज हम नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ लेंगे। अभी फॉरेन कंट्री जाए तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि अगर हम हस्बैंड से भी लड़ते हैं तो जल्दी से वो लड़ाई ख़त्म कर देते हैं कि छोड़ो छोड़ो अभी टाइम नहीं है। तो ये पूरा एटीट्यूड यहाँ भी हम, ये दुनिया हमारे लिए फॉरेन कंट्री है जिसके एक एक मिनट को हमें यूटिलाइज करना है, सुंदरता लानी है, उसमें खुश रह के यहाँ से जाना है। तो ये आज के संदेश के साथ बैठ जाएंगे। हमने अपने बेसिक जो सीक्वेंस था उसमें कैसे बैठना है आपको बताया हुआ है, कैसे मुद्रा लगानी है वो बताया हुआ है। इसके अलावा ये बताया हुआ है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ और हाइपर टेंशन वाले लोगों को, ब्लड प्रेशर वाले लोगों को ज़रा ध्यान से करना है, धीरे करना है। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को वो प्राणायाम नहीं करने जिससे पेट पे डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है, बाकी वो सब कर सकते हैं। और जो भी कर रहे हैं वो ध्यान से करें, धीरे से करें, इतनी हमारी रिक्वेस्ट है। सो अब हम बैठ जाएंगे, ये ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और ओंकार करेंगे। ओंकार 3 बार चांट करेंगे।
हमने गहरी सांस के साथ ओमकार से शुरुआत की है। ओमकार कैसे लेना है बहुत बारीकी से मैंने आपको बताया हुआ है अपने बेसिक सेशन में। जो लोग आज नए जुड़े हैं उन लोगों को भी मेरे को देख के जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। बाद में आपको बेसिक जब सीक्वेंस होगा तो आपको बहुत बारीकी से भी पता चल जाएगा कि किस तरह से हमको हर बैठना कैसे है, अपनी मुद्रा कैसे लगानी है। लेकिन आज के दिन हम बेसिक चीज़ों को टच नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हमारा समय हमें कम पड़ जाएगा। अभी हम खड़े हो जाएंगे और सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार, हम यहाँ जो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं वो 12 स्टेप का है। 12 स्टेप में हम किस तरह से करते हैं पहले मैं धीरे बताऊंगी, फिर आपको जो जल्दी करना बताऊंगी। सो 1 2 गहरी सांस लेके 3 एक्सेल, टो टचिंग करनी है। पैर के बाजू में हाथ आपके टच करने लगे, अगर नहीं टच कर रहे हैं तो भी जहाँ तक भी टच करते हैं वहाँ तक ले जाइए। फिर हाथ को टिका के लेफ्ट लेग पीछे लेकर जाइए और घुटना टिका दीजिए और अपनी गर्दन ऊपर की तरफ। ये गहरी सांस लेनी है। अभी आपको दूसरा पैर भी ले जाना है और स्ट्रेट रहना है। ये 5वां हो गया। छठे में आपको घुटने देख देने हैं, इस समय ना कोई सांस छोड़नी है ना लेनी है। और माथा और नाक ये नीचे लगा देना है, इससे हाथों पे पूरा प्रेशर आता है। उसके बाद नंबर 7 में ये भुजंगासन लगा देना है, भुजंगासन। उसके बाद हमको माउंटेन आसन करना है। माउंटेन में हम ये एड़ियाँ पीछे रखने की कोशिश करते हैं। एड़ी को पीछे टिकाएंगे तो पूरी तरह से आपके पैरों की एक्सरसाइज होगी। उसके बाद 9 काउंट पे हम दोनों हाथों के बीच में ये पैर ले आते हैं। दोनों हाथों के बीच में पैर लेकर आए, उसके बाद दूसरा पैर भी ले आए और फिर ऊपर आके गहरी सांस लेके छोड़। तो इस तरह से ये हमारा सूर्य नमस्कार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मुझको मालूम है कि हाथों के बीच में पैरों के साथ साथ पैरों को वापस लाना या उस तरह से टो टचिंग करना थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल होगा शुरू में, लेकिन टारगेट आप अपना बना के रखेंगे तो धीरे धीरे आपका बदन खुलने लगेगा और आप धीरे धीरे प्रोग्रेस खुद देख पाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि एवरी डे 1 आवर, एवरी डे 1 आवर। आप देखिए क्या मैजिकल चेंज आपके अंदर आएगा। आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी बदल जाएगी, आपके चेहरे की रंगत बदल जाएगी, आपकी स्किन टोन बदल जाएगी, आपका सब कुछ चेंज आने लगेगा और अच्छाई के लिए आने लगेगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं पहला प्राणायाम। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सीक्वेंस को ज़रूर याद रखने की कोशिश करें। जब आप 5-6 सीक्वेंस मेरे कर लेंगे, ये जो हम प्राणायाम करते हैं 5-6 सेशन यानी कि 1 हफ्ते आप मेरे वीडियो के साथ जब आप बैठ के याद करके कॉन्शियस रह के ये प्राणायाम करेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम एक प्राणायाम करते हैं फिर शॉर्ट क्रिया करते हैं, एक प्राणायाम करते हैं फिर शॉर्ट क्रिया करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम पहला प्राणायाम है। गहरी सांस लेनी है, गहरी छोड़नी है। स्टार्ट करिए। थोड़ी सी आवाज आनी चाहिए सांस लेने की, थोड़ी सी आवाज आपको सुननी चाहिए, लेकिन इतनी टेंशन नहीं कि माथे पर बल पड़ जाए, बल्कि चेहरे पर एक हल्की सी हंसी रहनी चाहिए। चेस्ट को एक्सपैंड करके पूरी तरह से हवा को भरना है और पूरी तरह से बाहर फेंकना है। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग शुड बी ऑफ सिमिलर डायमेंशन। आप अगर 2.5 सेकेंड लंबी सांस ले रहे हैं तो 2.5 सेकेंड लंबी ही छोड़िए। करते रहिए। मैं बीच में बोलूँगी तो आप अपना क्रिया बंद मत करिए, प्राणायाम बंद मत करिए।
ये प्राणायाम लंग्स की कैपेसिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि आपकी गहराई से सांस लेने की एक आदत ही पड़ जाती है। इस समय जो 1 घंटा आप प्राणायाम करते हैं उससे बहुत इनविजिबल पावर्स आपके अंदर जग जाती हैं। और पहली चीज़ है, आप गहरी सांस लेने लगते हैं, जो कि अपने आप में बीमारियों को हटाने का एक बहुत बड़ा तरीका है। गहरी सांस लेने की आदत, ये इसे 1 घंटे में डालनी है आपको। हंसते हंसते, जैसे योगी लोग करते हैं। ये रक्त शुद्धि का प्राणायाम कहलाता है। इससे आपके ब्लड में रेड सेल्स बनने लगते हैं, जिससे कि आपके ब्लड की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं वो थोड़ा आराम से करें, लेकिन यही एक तरीका भी है जिससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और उनको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। हमारे शरीर में, हमारे लंग्स में 8.5 करोड़ सेल्स हैं। ये सेल्स ही हमारी एनर्जी सोर्स होते हैं, जो कि नॉर्मल ब्रीदिंग में डॉर्मेंट हो जाते हैं और सिर्फ 25% ही काम करते हैं। अभी 25% सेल्स की जो एनर्जी है वो जब बढ़ने लगती है, यानी कि हमारे सेल्स जगने लगते हैं ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के कारण, ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करने के कारण, तो आपके अंदर नेचुरली पावर ज़्यादा आ जाती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाती है। आपको बहुत ज़्यादा खुश रहने की आदत खुद ब खुद हो जाती है, क्योंकि कमज़ोर आदमी ही ज़्यादातर उदास रहता है। आपको अगर नया नया अटेंड कर रहे हैं और आपको थकान हो रही है तो आप बीच में रुक भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर से चालू कर दीजिए। इस समय आपको संकल्प अंदर अंदर ये करना है कि मेरा अंदर पूरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है, बाहर की प्राण शक्ति मेरे अंदर आ रही है और उस प्राण शक्ति और मेरी प्राण शक्ति मिलके एक अलग ही पावर मुझको दे रही है, अलग स्ट्रेंथ मुझको दे रही है। और इसलिए आपको हर सांस पे ध्यान देना है। बहुत मन बहुत चंचल होता है, वो धीरे धीरे कहीं भी किसी भी और जगह पर उड़ जाता है, लेकिन आपको खींच के फिर से सांसों पे लाना है। सांसें गहरी, कमर सीधी, सांस गहरी, कमर सीधी, चेहरे पे कोई टेंशन नहीं, माथे पे और चेहरे पे थोड़ी सी हंसी, और इस तरह से हमको पूरा भस्त्रिका करना है। ये हमने भस्त्रिका कंप्लीट किया। भस्त्रिका पहला प्राणायाम है, जो कि हमारी रक्त शुद्धि का प्राणायाम है, और इससे हमारे अंदर बहुत सारे रेड सेल्स पैदा होते हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स, अगर हमारे को कोई बीमारी हो तो उसके लिए 50 तरह की मेडिसिन देते हैं, और हम जिनका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है, लेकिन नेचुरल तरीके से अगर आपके रेड सेल्स बढ़ते हैं तो इससे बड़ी सीढ़ी सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए और कोई नहीं हो सकती। इसके बाद अब हम एक शॉर्ट क्रिया करेंगे। हर प्राणायाम के बाद हम एक आसन करते हैं। ये है तितली आसन। इसमें सेंटर में एड़ी रखनी है और उसके बाद ये फ्लैप करना है। आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। जिन लोगों के घुटने नीचे टच नहीं हो रहे हैं वो कोई टेंशन नहीं रखें, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके इस जॉइंट का कैल्सिफिकेशन कम होता जा रहा है, और रोज़ करने की वजह से आपका ये जॉइंट खुलता जा रहा है। तो ये जॉइंट, हर जॉइंट घुटने का, नीचे टखने का, ये सब जॉइंट खोलने अपने को बहुत ज़रूरी है। और अपने शरीर का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। भगवान ने हमें बहुत सुंदर शरीर दिया है, बहुत ही सारा। एक ये अद्भुत अजूबा है जिसके रिसर्च में
करोड़ों लोग लगे हैं दुनिया के, लेकिन उसका पार पाते नहीं हैं। मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ है जानने के लिए। इतनी इतनी एक्सेलेंट मशीनरी के साथ हम पैदा हुए हैं, लेकिन उसमें जो जंग लगती है, जो कैल्सिफिकेशन होता है, जो जुड़ जाता है, उसकी हम चिंता नहीं करते। हाउ बैड इट इज़। ये एक अपने अंदर से क्रिमिनल चीज़ है अगर आप रोज़ इसकी तरफ ध्यान नहीं देते और कोई एक्सरसाइज नहीं करते। प्राणायाम बहुत बड़ी विद्या है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है जो आपको आपकी उम्र से पहले बुढ़ा नहीं होने देगा। आपको एक सुंदर लाइफ मिलेगी और आप मेडिकल डिपेंडेंसी आपकी दिन पर दिन कम होती जाएगी। अभी हम दूसरा प्राणायाम शुरू करेंगे। दूसरे प्राणायाम के लिए मैं पद्मासन लगा रही हूँ। कितने आसन होते हैं ये मैंने पहले सीक्वेंस में बताया है। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उस आसन में बैठ सकते हैं। और कपालभाति के लिए आपको नाक से इस तरह से हवा निकालनी है जैसे यहाँ कुछ आपके चिपका हुआ है, हाथ आपके मुद्रा में है, लेकिन सिर्फ आप जोर से हवा फेंक कर ही वो मच्छर मक्खी भगा सकते हैं। इस तरह की फीलिंग के साथ आपको सांस लेना नहीं है, आपको सिर्फ छोड़ना है। इस तरफ ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ छोड़ना है। नेचर अपना काम खुद करेगी और जितनी जोर से आप सांस छोड़ेंगे उतनी ही जोर से सांस ऑक्सीजन आपके अंदर आएगी और आपके इंटरनल सिस्टम को हील करेगी। बाय डिफॉल्ट पेट अंदर जाता है। जो लोग आज ही के दिन पहली बार देख रहे हैं वो लोग आंखें खोल के ये कपालभाति कर सकते हैं और ऑब्जर्व करते हुए इसको करिए। किस तरह से कि आपको सिर्फ नाक से बाहर सांस फेंकनी है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर की निकाल देनी है और ऑक्सीजन खुद एटमॉस्फेयर में से आपके अंदर जाएगी। एक सेकंड में स्पीड आप तेज भी कर सकते हैं, धीरे भी कर सकते हैं, लेकिन एक सेकंड में एक बार जो एक रेशियो है वो बहुत अच्छी स्पीड है। आप अंदाज से उस स्पीड से ये कपालभाति करिए। ये रॉयल आप करते रहिए। ये रॉयल प्राणायाम है और हर बीमारी के लिए कारगर होता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो बहुत धीरे करेंगी इसको, बहुत ही धीरे, बहुत ही धीरे। बस कॉन्शियसली सांस बाहर फेंकेंगी धीरे से और अपने आप सांस आता है उसको इंजॉय करेंगी। बाकी लोग थोड़े फोर्सफुली करें और उससे आपके वेल्व्स, जितने भी बॉडी में एक वेल्व्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। और कहा जाता है कि अगर कपालभाति कैंसर तक हो, मतलब वो क्योर करने में काम आती है। कपालभाति और अनुलोम विलोम ये एक दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं और जितनी देर आप कपालभाति करते हैं उतनी देर आपको अनुलोम विलोम कराया जाता है। बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए हर 2-2, 4-4 घंटे में भी प्राणायाम कराया जाता है। जब हम हरिद्वार जाते हैं और हॉस्पिटल में जो केस होते हैं उनको ये बड़ी विशेष तरीके से कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ वेलनेस के लिए आपको बताऊँगी, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको अपने डॉक्टर को बाईपास नहीं करना है, सिर्फ आपको महसूस करना है कि प्राणायाम करने से आपका ओवरऑल हेल्थ में कितना फ़र्क आ रहा है। ये आपको एक दिन आज के आज भी अगर आप कर रहे हैं तो आज भी पता चलेगा कि आपका एक पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। पूरे दिन को स्पेंड करने की आपकी अलग ही एक क्षमता आ जाती है। आप ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, एक ब्रेन आपका ज़्यादा काम करने लगेगा। ये आज की आज पता चलेगा, आपको महीनों वेट करने की ज़रूरत नहीं है।
ये हमारा कपालभाति प्राणायाम हो गया। अभी हम आसन खोल लेंगे और पैरों की एक्सरसाइज, लेग एक्सरसाइज करेंगे। लेग एक्सरसाइज का पर्पस है कि हमारे पैरों में जितने भी जॉइंट्स हैं वो खुल जाएं और हमको कैल्सिफिकेशन जो रोज रोज हमारे बॉडी में होता ही है उसको हम रेक्टिफाई कर ले, जमने नहीं दे। तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now roll it. 1 2 3 4 5. पूरा शून्य बनाना है। 1 2 3 4 5. अभी हाथ में मुट्ठी बांध लीजिए और ये जो एरिया है नीज के नीचे वाला, उससे ग्राउंड को टच करने की कोशिश करिए फुल फोर्स के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. अभी हम ये टोस के लिए एक्सरसाइज करेंगे पूरा दम लगा के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इससे पूरी आपकी बैलेंसिंग, बहुत जल्दी लड़खड़ाएंगे नहीं, बड़ी एज में भी आप आराम से चल फिर सकेंगे, गिरने का डर नहीं लगेगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है, दो इट लुक्स वेरी सिंपल। अभी हम तीसरा प्राणायाम करेंगे जो है बाह्य प्राणायाम और अग्निसार। इसके 2 पार्ट्स हैं, बाह्य प्राणायाम एंड अग्निसार। तो मेरे जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो पहले ऑब्जर्व करेंगे और जो लोग करते आ रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं मेरे साथ। गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अभी तीनों बंद लगा लीजिए। तीनों बंद में जलंधर बंद यानी कि ठोड़ी को गर्दन के नीचे टिप बॉटम पे लगाना है, गर्दन के इस एज पर। उसी तरह से नाभि से पूरा का पूरा पेट अंदर खींच लेना है और रेक्टम को साथ में खींच लेना है। तो जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद, और पूरा श्रिंक करके बैठ जाना है। अभी सांस सीधे हो जाएंगे, बंद खोल देंगे। अब गहरी सांस छोड़ेंगे। तीनों बंद लगा लीजिए। पेट ऐसे नाभि के पास से ऐसे लगना चाहिए कि आप कमर से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से इनस को खींच लीजिए। ये पूरा का पूरा इस एरिया के लिए बहुत बड़ा, बहुत अच्छा फायदेमंद प्राणायाम है। प्रेग्नेंट लेडीज इसको नहीं करेंगी, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं करिए क्योंकि इस पे प्रेशर आता है। अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ गर्दन वाला बंद लगाइए और मूल बंद लगा के बैठ जाइए हल्का सा। तो हल्के से कुछ भी करेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होना, लेकिन फोर्सफुली झटके के साथ कुछ नहीं करना। अभी एक बार और करेंगे। गहरी सांस छोड़िए। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। 21 बार तक आप इसको कर सकते हैं। अब की बार, अभी हमने 3 बार ये किया है, अब हम अग्निसार करेंगे। अग्निसार में पूरा उसी तरह करना है, लेकिन फिर पेट को इस तरह हिलाना है। ठीक है, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अभी तीनों बंद लगाइए और पेट को हिलाइए। सीधे हो जाइए। इससे बहुत ज़बरदस्त पसीना आने लगता है। अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा ठीक हो जाता है इससे। गहरी सांस छोड़िए, फिर से बंद और पेट आगे पीछे।
सीधे हो जाइए, गहरी सांस छोड़िए। छोड़ देंगे। ये हमारा बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया हो गई। ये प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है, आप 21 बार तक कर सकते हैं इसको। आपके समय की क्या अवेलेबिलिटी है, पर यहाँ पर हम 3 बार करते हैं। अभी हम हैंड एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारे को आराम भी मिलता है बीच में शॉर्ट क्रिया से, और हमारा जॉइंट्स के लिए एक एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो इस तरह से रखिए, अंगूठा अंदर करके ऐसे भी रख सकते हैं। उसके बाद नकल्स को मिलाइए, नकल्स को मिला के पूरा हाथ सीधा रखिए। ये हाथ सीधे नहीं रहते हैं लोगों के, जब वो नकल मिलाने लगते हैं तो हाथ को ऐसे कर लेते हैं, नहीं, सीधा रखने की कोशिश करिए। उसके बाद रोल करिए, 1 2 3 4 5, रिवर्स 2 3 4 5। कंधे पे हाथ रख के ये कोहनी को टच करिए और पूरा कान को टच करते हुए जीरो बनाइए, कोहनी से जीरो बनाइए। पेट को टच करिए, कान को टच करिए। 2 3 4 5, रिवर्स 2 3 4 5। नोटिस करिए, मैं कोहनी को टच करती हूँ बार बार, उसी तरह से इस हिस्से को टच करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये आसान लगते हैं, लगने वाले प्राणायाम है, लेकिन कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अब आप इस अपनी रिस्ट को पकड़ लीजिए, पीछे ले जाने की कोशिश करिए, जितना भी ज़्यादा पीछे ले जा सकते हैं। गर्दन को मोड़ना नहीं है, हाथ की एक्सरसाइज करनी है। गहरी सांस और एक तरफ खींच लीजिए और बंद लगा के बैठ जाइए। सांस आपके अंदर है, गर्दन सीधी रहेगी, हाथ जितना भी ले जा सके। सेंटर, गहरी सांस, दूसरी तरफ। ऐसे झुकना नहीं है, कुछ नहीं करना। सेंटर, गहरी सांस, फिर से पुल करिए। सेंटर, गहरी सांस, स्ट्रेट बैठना है, गर्दन सीधी रखनी है। आपके कंधे बिल्कुल खुल जाएंगे इससे। अभी हम रख देंगे, नीज पे हाथ रख के गर्दन, ये कंधे को रोल करेंगे। 2 3 4 5, रिवर्स 2 3 4 5। अभी चक्की के लिए पूरा पैर इस तरह से जितना फैला सकते हैं फैलाइए और तो टच करने की कोशिश करिए। 1, कोहनी मुड़ेगी नहीं। 2 3 4 5, रिवर्स 2 3 4 5। सो इस तरह से हमने हैंड एक्सरसाइज की। अब हम दोबारा बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ये वाली दो उंगलियां और अंगूठे से किया जाता है। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो ध्यान से आंखें खोल के करें। बाकी लोग कर सकते हैं एक हाथ मुद्रा में, कोई सी भी मुद्रा लगाइए, वो आपको डिटेल मैंने पहले बताई हुई है। अभी एक नॉस्ट्रिल बंद करिए हल्के से। अभी दूसरा, जिस तरफ से सांस ली वो बंद करिए और ऑपोजिट साइड से छोड़ दीजिए। यहीं से ले लीजिए। फिर अभी ये बंद कर लीजिए और ऑपोजिट साइड से छोड़िए। फिर गहरी सांस, ऑपोजिट साइड से छोड़ेंगे। रुकना नहीं है कहीं पर भी, लगातार करते जाना है। जितना गहरा सांस ले रहे हैं उतना गहरा ही छोड़ना है, मुंह से नहीं छोड़ना है, नाक से ही छोड़ना है।
ठंडी हवा कैसे नॉस्ट्रिल में आ रही है, एंजॉय करिए, बहुत तन्मयता से करिए। ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए आधा घंटा भी अगर आप करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर में बहुत फर्क आएगा। इसमें कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, आप धीरे धीरे करिए। वैसे भी ब्लड प्रेशर के लोगों को बहुत आराम से करना है, शांति से एंजॉय करते हुए, जैसे योगी मुनि बैठते हैं, बिल्कुल चेहरे पे एक शीतलता। जितनी देर आप कपालभाति करते हैं उतनी देर अनुलोम विलोम करिए। ये पूरी की पूरी पाइपलाइन हमारी अंदर से क्लीन हो जाती है। हर प्राणायाम को पहले 3 मिनट से स्टार्ट करिए और 15 मिनट तक आप आराम से कर सकते हैं। 12 मिनट 15 मिनट ये आराम से कर सकते हैं। आपकी टाइम की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ यू सेट योर 1 आवर। छोड़ देंगे। इस तरह से हमारा अनुलोम विलोम 4th प्राणायाम हो गया। अब हम नेक एक्सरसाइज करेंगे शॉर्ट क्रिया की तरह से। नेक एक्सरसाइज आज के ज़माने में करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो नेक एक्सरसाइज किस लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है? क्योंकि हम हर समय फ़ोन पर रहते हैं, कंप्यूटर पर रहते हैं और उससे हमारे गर्दन का शेप ही बदलने लगी, इस तरह से होने लगी है। तो इस शेप को डिफॉर्म ना होने दें और इसको आप ये वाली एक्सरसाइज अगर ऑफिस पर ज़्यादा है तो ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो हाथ रखिए इस तरह से, गहरी सांस, पुश, हाथ से सर से हाथ पुश करना है जोर से, जितनी ज़्यादा ताकत से आप कर सकते हैं। सीधे बैठना है, एकदम सीधे। छोड़ दीजिए। अब टॉप ऑफ द हेड, जहाँ बच्चे का एक सॉफ्ट पोर्शन होता है, गहरी सांस, पुश, बैक, कान की सीध में गहरी सांस, पुश, चिन, गहरी सांस, पुश, अभी कान और आंख के बीच में ये जो पोर्शन है, टेम्पल एरिया, इस पर हाथ की हथेली रखनी है। एक हाथ मुद्रा में, गहरी सांस, पुश, झुकना नहीं है, सीधे बैठना है, सिर्फ प्रेशर देना है। अदर साइड ऑल्सो, गहरी सांस, पुश, ये हमारी नेक एक्सरसाइज हुई। अब आपको रोल करना है। रोटेट करिए, डाउन, कंधा टच करिए, बैक, अदर साइड एंड डाउन। नाउ रिवर्स। ये नेक एक्सरसाइज अगर आपको सर्वाइकल से बचना है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग, बैड एलिमेंट, उसके हिसाब से आप ये रोज़ करिए। वरना आजकल एपिडेमिक की तरह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस सबको हो जाता है, उससे बच जाएंगे अगर आप रोज़ ये एक्सरसाइज करेंगे। अभी हम
ऊंचाई करेंगे। ऊंचाई थोड़ा ट्रिकी प्राणायाम है जिसमें हम गले को कॉन्ट्रैक्ट करते, अंदर थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करके नाक से सांस लेते हैं और आवाज़ निकालते हैं। तो मैं पास में बैठ जाती हूँ, आप देखिए किस तरह से सांस ली जा रही है, आप ध्यान से देखिए। और फिर तीनों बंद लगा लेने हैं। सीधे हो जाइए, बंद खोल दीजिए और एक नॉस्ट्रिल, राइट साइड नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट साइड से हवा निकाल दीजिए। जो भी ऑक्सीजन आपने ली थी वो अब कार्बन डाइऑक्साइड अब बन गई है और उसको आपको लेफ्ट साइड से निकाल देना है। अभी दूसरी बार करेंगे। इससे खांसी आती है, इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जो लोग बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं वो इस तरह से अपने थ्रोट को मसाज दे सकते हैं। देखिए, इसको कबूतर की आवाज़ निकालना भी कहते हैं। तो अभी एक बार और करेंगे ऊंचाई। तीनों बंद लगाएंगे। फिर सीधे हो जाएंगे। ये हमारा ऊंचाई प्राणायाम पूरा हुआ। ऊंचाई प्राणायाम से थ्रोट की जितने इन्फेक्शन होते हैं वो नहीं लग पाते हैं इन्फेक्शन। और दूसरी बात, गाना जो लोग बहुत शौक से गाना गाते हैं उनको भी एक स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, तो वो सुबह शाम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 5वां प्राणायाम हमने कंप्लीट किया। अभी हम 3 प्राणायाम इकट्ठे करेंगे। जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो पहले मेरे को ऑब्जर्व करिए कि तीनों प्राणायाम हम कैसे एक साथ करते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ बीइंग पीसफुल। यानी कि हम सब कुछ जो दुनिया में करते हैं अपने हैप्पीनेस के लिए, अपनी पीसफुलनेस के लिए ही करते हैं, और उसको अगर अचीव करना है तो इस मेडिटेशनल प्राणायाम को साधना बहुत ज़रूरी है। साधना कैसे है कि पूरी के पूरा ध्यान आपका अपनी तरफ ही रहना चाहिए, अपने अंदर सिस्टम में क्या चल रहा है, मैं जब ये कर रहा हूँ तो मुझको कैसा फील हो रहा है, कितनी पीसफुल फीलिंग है। तो इस तरह से अपने को ऑब्जर्व करके जब आप ये प्राणायाम करेंगे तो आपको असली सुख मिलेगा और असली फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम है, उसमें 3 उंगलियां साइड में रखनी है, आँख के साइड में 1 उंगली ऊपर रखनी है, अंगूठे से ये पूरा का पूरा लिड दबा देना है जिससे कि आपको बाहर का कुछ सुने नहीं। जीभ को फोल्ड करके तालवे से लगा देना है इस तरह से। अब मुंह को बंद कर लेना है। मुंह को बंद करके फिर ओंकार अंदर ही अंदर कहना है, और उस ओंकार की उसको पहले पूरे फेस पे महसूस करिए उस हमिंग को, फिर वो माइंड में महसूस करिए, और आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो पूरा शरीर एक झन्नाहट से भर जाता है। और मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है। करना शुरू करेंगे। गहरी सांस। तीन बार ये करने के बाद हम 3 बार ओंकार करेंगे, आंखें बंद रहेंगी। गहरी सांस।
अब हम शांति से बैठ जाएंगे, अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। सांस जो भी लेंगे गहरी लेंगे, पर आवाज़ ज़रा भी नहीं। अब हाथ ऊपर ले जाके रब करिए, जोर से रब करिए, एक गर्मी पैदा करिए, ऊर्जा पैदा करिए और इसको सेल्फ हीलिंग के लिए अपने ऊपर ही डाल लीजिए। इस तरह से हमारा ये प्राणायाम सेशन खत्म हुआ, लेकिन इसके साथ हम कुछ आपको इम्पोर्टेंट मंडूकासन आपको बताएंगे, हास्यासन बताएंगे, जिससे कि आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम, पेनक्रियास की, यानी कि जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं उनके लिए खासकर बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको देखिए, इस तरह से मोटी करिए और यहाँ पैडिंग दीजिए, यानी कि ये नाभि है, नाभि के एकदम सामने ये लाइन आपके हाथों की आनी चाहिए। गहरी सांस लीजिए और नीचे झुक जाइए। नीचे हिप्स से झुकना है, गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। जैसे ही आपकी चेस्ट नीज पे लग जाए वहाँ रुक जाइए। आंखों से आईब्रोज के बीच में देखिए। ऊपर आ जाइए, हिप से ऊपर आना है। अभी हाथ की पोजीशन चेंज कर लीजिए, इस तरह से आप रखिए। ये जो बीच में एक गड्ढा है उसको नाभि के ऊपर, गहरी सांस छोड़ते 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 हिप से ही झुकना है, पूरा सीधा रहना है, गर्दन सीधी रहेगी सामने की तरफ। आईब्रोज के बीच में देखिए और बैठ जाइए बंद लगा के। ऊपर आ जाइए, सांस लेते 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 लेते। अब तीसरा मंडूकासन है, इस तरह जगह बनाइए और दोनों साइड में पैडिंग रखिए अपने हाथों की मुट्ठी की और फिर से झुक जाइए। सांस छोड़ते 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 नीचे जाइए। ऊपर आ जाइए धीरे धीरे। और अब ये हाथ को सीधा ऊपर रखिए, ऊपर रखिए इस तरह से, कान को टच करते करते। और अब आप जब झुकेंगे तो हिप से झुकना है, कान पर से हाथ नहीं हटेंगे, कान पर सीधे हाथ ऐसे ही रहेंगे और नीचे टिका दीजिए अपने मैट पर। पूरा झुक जाइए, महसूस करिए कि आपके पेट का हिस्से में पूरा का पूरा वो आपकी नींद से जुड़ गया है। और अब आप ऊपर आइए सांस लेते लेते, लेकिन कान को ही टच करते 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 उठना है, कान को ही टच करते करते सीधे उठ जाना। इस तरह से आपके 4 मंडूकासन हुए। ये आप 3-3 बार भी कर सकते हैं, और डायबिटीज़ की अगर प्रॉब्लम भारी है तो आप 5 बार करिए, 10 बार करिए, 10-10 बार, और आप देखेंगे कि कितना फ़र्क आता है। आपके रिजल्ट्स, आपके टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा और आपको एक अलग एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आपकी पेनक्रियास की एक्सरसाइज हो रही है और जो कि आपकी मेजर प्रॉब्लम होती है। अभी आप ये 4 मंडूकासन करने के बाद इस तरह से हाथ रखिए, इस तरह से हाथ रख के बैठ जाइए। अब हम सिंहासन करेंगे। यहाँ पर देखना है आपको, आंखें पूरी चौड़ी करके खोलनी है, जीभ को बिल्कुल यहाँ तक टच करना है और सिंह की आवाज निकालनी है। थोड़ा गर्दन को सहला लीजिए इस तरह से।
अभी हम हास्यासन करेंगे। हास्यासन में हम अपने हाथों से पूरा एक्यूप्रेशर अपने बॉडी को देंगे। ये जितनी उंगलियां हैं, ये जितना है, ये सब टच करना चाहिए एक दूसरे से। लापरवाही से ताली नहीं बजानी है, पूरा कॉन्शियसली ताली बजानी है और जोर जोर से हंसना है। हंस के पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देनी है। ये अपने आप में बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है और मन से प्रसन्नचित होकर जब आप करेंगे तो इसका दुगना फायदा मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। ओम 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 शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मन् शांति, सर्वं शांति, शांति रेति शांति, सामा शांति रेति। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। अभी मैं आपको थोड़ा सा बातें मैंने सेशन शुरू होने से पहले की, अभी फिर से मैं आपसे थोड़ा सा कुछ बातचीत करना चाहूँगी। अपने पास 2-3 समय का समय है, 2-3 मिनट बाकी हैं। तो हमने जैसा कहा कि हमको इस दुनिया में अगर आए हैं तो हम एक फॉरेन कंट्री में आए हैं। फॉरेन कंट्री में जैसे आप एक एक मोमेंट को क्रिएटिविटी में बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ नया देखने की कोशिश करते हैं, कुछ नया फन एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, नेचर को देखते हैं, नेचर को सराहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा होती है उस टाइम। और आप बीमार सर दर्द भी हो रहा हो तो उठ के चल देते हैं कि कोई बात नहीं, ये मौका फिर से नहीं आएगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप जब हर दिन की शुरुआत करें तो इतना ही एक्साइटमेंट आपके अंदर हो। लेकिन ये एक्साइटमेंट कहने से तो नहीं आता कि मैंने आपको कह दिया तो वो एक्साइटमेंट से आप भर जाएंगे। तो कैसे भरेंगे? ये इंसाइट कि मैं अब क्या कर लूँ, ये इंसाइट कि मैं अभी हैप्पी नहीं हूँ, मुझे हैप्पी होना है, ये इंसाइट कि अपने आप को ऑब्जर्व कर पाए, ये एक इंसाइट है, एक बहुत बड़ी एक कैपेबिलिटी है। और यही इंसाइट की पावर आपको प्राणायाम देता है। ये प्राणायाम जब आप लगातार करने लगते हैं तो आपके अंदर एक अलग सी एक विजडम आने लगती है, आइडियाज़ आने लगते हैं, रह रह के आपको कुछ सूझने लगता है। और ये जब सूझने लगता है तो आपकी पर्सनैलिटी एकदम अलग हो जाती है। और ये पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है उसको कोई इग्नोर नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ये प्राणायाम सेशन हमने जो शुरू किया है, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम तो करता ही है ना, हर एक का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ हमने जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारी वर्कफोर्स है, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे वो कंपनी में हो, चाहे वो घर का स्टाफ हो, कोई भी हो, अगर हम उनके अंदर ये ऊर्जा भरने की एक हिम्मत दिखाएंगे, एक जोश दिखाएंगे, आपके घर में जितने लोग हैं सबको खींचिए कि हमको ये इंसाइट पैदा करनी है, ये स्किलफुलनेस लानी है जो अपने आप ही पैदा होगी जब आप प्राणायाम करेंगे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग आपके दिख रहे हैं उनको ये सेहत का दान दीजिए। इससे बड़ा दान शायद कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच।